वी हैव द आर ग्लास पैटर्न, आर ग्लास पैटर्न भी उनके सिमिलर ही है, ये इसका लॉजिक। एंड नेक्स्ट लेट्स सी द शेप, इसकी शेप आ रही है सबसे पहले एक इन्वर्टेड राइट ट्रायंगल, एंड नेक्स्ट इसकी शेप है एक राइट ट्रायंगल की जैसे, तो हम इसमें दोनों के लॉजिक यूज करेंगे, तो ये वाली शेप भी बहुत इजीली प्रिंट हो जाएगी एज यू सी इट्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी हैव द होलो स्क्वायर, होलो स्क्वायर भी उनके सिमिलर ही है, विल सी द लॉजिक। हियर इज द होलो स्क्वायर। These are some of the examples for printing pattern. So let's execute them on the Programmy's online compiler, starting with the right half pyramid pattern. So for this, we will have to open the online C compiler. Here you have to write the code. And then when clicked on run, it will print the asterisk pattern of right half, which is right half pyramid pattern. So let's try the second one, rhombus pattern, in our online compiler. Here first we have to write the code and then click on run. And then here is the rhombus pattern printed with 5 rows, first with the decreasing order spaces and then with 5 asterisks in every line. Next, we will see the diamond pattern and try it on the online compiler. So firstly, write the code and then run. And here is the diamond pattern. So next to be executed is the hourglass pattern. So let's also run it online. So first of all, we'll write the code and then run. And then here is the hourglass pattern also printed here. And next we have the hollow square pattern. So let's also run it online. Here we first have to write the code and then run. And then we will see that the hollow square is also printed here. So that's all for the practice programs. There are many types of patterns you can print in many ways, just like in asterisks, just like in numbers, just like in alphabets. So it's your work to practice the other programs for the pattern making and write the code, and also comment us if you have any doubt related to the today's lecture. Next, we have the third type of control statement, which is the jump statement. So what is the jump statement? Jump statement basically होता क्या है? Jump statement control flow statements होती है that alter the normal sequential execution of a program by transferring control to the different part of the code. Basically जब हमारा program एक sequential way में execute हो रहा होता है तो उस पार्ट ऑफ कोड से दूसरे पार्ट ऑफ कोड पे कंट्रोल फ्लो ट्रांसफर करने के लिए जंप स्टेटमेंट यूज आती है। सी में 3 टाइप की जंप स्टेटमेंट होती है, बेसिकली ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू, एंड रिटर्न इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्टेटमेंट वी विल learn here. First of all, we have the break statement. So break statement क्या होती है? Break statement is used to end the loop immediately after an encounter. अगर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन पे या हमको किसी भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे लूप एनकाउंटर करना हो, उसको लूप को टर्मिनेट करना हो, तो ब्रेक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल होती है. Just we see break is also used in the switch case, as we also learn it through the example very properly. First of all, we had the header file stdio.h. Next, the int main function, and then we have in the body int n equals to 5 and sum equals to 0. Here n की वैल्यू हमने दे दी 5 और sum दे दिया 0. नेक्स्ट हमने लगाया फॉर लूप. फॉर लूप में क्या है? int i equals to 1, एक इंटीजर ले लिया i, इसकी वैल्यू है 1. नेक्स्ट कंडीशन हमारी है i इज लेस देन इक्वल्स टू n, n की वैल्यू है 5, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जो कि 5 टाइम्स ट्रू होगी ये कंडीशन जब जब i की वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स. नेक्स्ट i प्लस प्लस मीन्स i इंक्रीमेंट हो जाएगा आफ्टर ईच इटरेशन. नेक्स्ट इस लूप में क्या हो जाएगा? एक और हमने इंटीजर दे दिया इंट नंबर, इसमें नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंट एफ एंटर अ पॉजिटिव नंबर. हमने यहाँ पे यूजर एंट्री ले ली एक पॉजिटिव नंबर की, इसमें स्कैन एफ आ जाएगा %d एट द एड्रेस ऑफ नंबर. नंबर के प्लेस पे हम नंबर एंटर करेंगे. फिर हमने कंडीशन दे दी कि इफ एन इज लेस देन नंबर इज लेस देन 0, अगर नंबर की वैल्यू 0 से कम होगी, मतलब जो भी हम एंट्री देंगे यहाँ पे यूजर एंट्री के थ्रू एट द एड्रेस ऑफ नंबर, अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी तो प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव नंबर एंटर और प्रिंट हो जाएगा लूप ब्रेक्स, मतलब जो भी आपने वैल्यू दी है वो एक नेगेटिव नंबर है और लूप ब्रेक हो गया. तो इसके बाद में आ जाएगी ब्रेक. ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ हुआ है टू यूज द ब्रेक जंप स्टेटमेंट. सो अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे तो ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा और बाद में एग्जीक्यूट नहीं होगा. और अगर नंबर की वैल्यू 0 से छोटी नहीं है तो हर टाइम
सम प्लस इक्वल्स टू नंबर मीन्स सम की वैल्यू हमारी थी यहाँ पे 0, मीन्स 0 की वैल्यू हर बार चेंज, सम की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी, मीन्स सम प्लस इक्वल टू नंबर का मतलब होता है सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, मीन्स नए वाले सम की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी प्रीवियस सम प्लस नंबर, मतलब कि 0 प्लस नंबर, और नंबर की वैल्यू नंबर यहाँ पे आ जाएगा जो भी हम यहाँ पे यूजर एंट्री के थ्रू एंटर करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लास्टली प्रिंट हो जाएगा सम परसेंट डी, मीन्स सम जो भी लास्ट में टोटल होके आ जाएगा वो परसेंट डी में जो भी सम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी वो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद में रिटर्न 0 फॉर आउटपुट। नेक्स्ट हमारा लूप क्या आ गया, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, हमारे आउटपुट में सबसे पहले क्या आया, जो भी हमने नंबर की एंट्री कराई थी ना वो वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर की एंट्री करो, फिर हमने एंटर किया 14, फिर वापस से वो लूप एग्जीक्यूट होगा, वापस से वो इटरेशन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, मतलब मीन्स इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, जो एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है मीन्स सम की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है, तो वापस से लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा एंटर अ पॉजिटिव नंबर वाला। सो वापस से हमने एक पॉजिटिव नंबर की एंट्री ली जिसमें हमने डाला 26। नेक्स्ट फिर से हम हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ और एंटर अ पॉजिटिव नंबर आया जिसमें हमने नेगेटिव नंबर डाल दिया, अगर ये नंबर 0 से छोटा है ऑफ कोर्स इट इज लेस देन 0, तो प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव नंबर एंटर, मीन्स जो भी आपने नंबर डाला है वो एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इफ नंबर इज लेस देन 0, तो ब्रेक लग जाएगा, मीन्स वापस से ये फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट ब्रेक लग जाएगा, सम कैलकुलेट हो जाएगा, सम कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया सम इज 40, जो भी हमारे जो प्रीवियसली नंबर डाले थे जो कि 0 से बड़े थे उनका सम आ जाएगा 40। दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट। सेकंड वी हैव द कंटिन्यूस स्टेटमेंट, कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। व्हेन द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज एनकाउंटर, जो जब भी कंटिन्यूस स्टेटमेंट प्रोग्राम में एनकाउंटर होती है, द कोड बिलो द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नेक्स्ट इटरेशन बिगिंस, मींस जो भी कंटिन्यूस, जब भी किसी कंडीशन में कंटिन्यूस स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है वो वाला इटरेशन स्किप हो जाता है और नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाता है। मींस ब्रेक में क्या था, जो भी ब्रेक आ जाता था किसी भी सी प्रोग्राम में तो नेक्स्ट के सारे जितने भी इटरेशन से सारे स्किप होके लूप टर्मिनेट हो जाता था। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, जब भी कोई कंडीशन में कंटिन्यू आ जाता है, जब भी कोई कंडीशन के ट्रू होने पर कंटिन्यू एनकाउंटर हो जाता है वो वाला इटरेशन स्किप हो जाता है और नेक्स्ट जितने भी इटरेशन है वो सारे कंटिन्यू चलते हैं। Let's understand with the example. First, here we have the header file. Next, int main function. In this integer type variable, sum equals to 0. यहाँ पे हमने दे दिया sum 0 है। फिर for i is equals to 1. Integer i हमने यहाँ पे दे दिया 1. I is less than or equals to 10. I plus plus. यहाँ पे according to this loop, i की वैल्यू हो गई 1 और 1 is less than 10. ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब इसके अंदर हमने एक और कंडीशन डाली है, इफ आई मॉड 3, मतलब आई की जो भी वैल्यू आएगी अगर उसको 3 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर, नॉट आंसर, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब वो वाला इटरेशन स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स इफ आई मॉड 3 इक्वल इक्वल 0, तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 1, लेकिन 1 मॉड 3 0 के इक्वल नहीं होता क्योंकि 1 3 से छोटा है तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। नेक्स्ट कंटिन्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, पर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है सम प्लस इक्वल्स टू आई, मतलब सम जो हमने वैल्यू यहाँ पे 0 दी है वो हर इटरेशन में चेंज होता रहेगा, मतलब सम की वैल्यू हो जाएगी सम प्लस आई, मीन्स 0 प्लस आई की वैल्यू अभी है 1, मतलब 0 प्लस 1 सम की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर नेक्स्ट इटरेशन में हम चेक करेंगे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 हो गई, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ये लूप में एंटर कर जाएगा। लूप में फिर जो कंडीशन है इफ 2 मॉड 3 इक्वल इक्वल 0, बट 2 को 3 से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं बचता, रिमाइंडर 2 बचता है, क्योंकि 2 3 से डिवाइड नहीं होता तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इफ में जो कंटिन्यू है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर से सम की वैल्यू हमारी पहले बनी थी 1 लेकिन अब मॉडिफाई हो जाएगी सम प्लस आई, मीन्स 1 प्लस आई की वैल्यू जो करंट है 2, तो 1 प्लस 2 सम की वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 3। फिर नेक्स्ट वापस से लूप का इटरेशन चलेगा, आई की वैल्यू 2 थी अब 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 10, फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप में एंटर कर गया इफ आई मॉड 3 इक्वल इक्वल 0, मीन्स आई की वैल्यू अब हमारी है 3, 3 मॉड 3 मतलब 3 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं तो रिमाइंडर बचता नहीं है, मीन्स 0, 0 बच गया तो कंटिन्यू हो जाएगा, मीन्स जो आगे सम की वैल्यू जो चेंज हो रही है ना वो वाला प्रोसेस नहीं होगा, डायरेक्ट नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा। जब भी 3
किसी से भी डिवाइड होके रिमाइंडर 0 देगा तो वो वाले इटरेशन का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस से दूसरा इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जब आई की वैल्यू 3 थी तो 3 mod 3 0 आ रहा है तो कंटिन्यू हो जाएगा। मीन्स जो सम की वैल्यू अब आई के 3 होने से मॉडिफाई हो रही थी ना, वो नहीं होगी। अब नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा जब आई की वैल्यू 3 से 4 हो गई। आई की वैल्यू 3 से 4 हो गई, 4 इज लेस देन 10, फिर से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये वापस से इफ वाली कंडीशन चेक करेगा। अब आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, तो 4 mod 3, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर भी तो 1 आएगा। जो रिमाइंडर बचा है हमारे पास 4 को 3 से डिवाइड करने पे, वो 1 बचेगा, तो 1 के 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे सम की वैल्यू वापस से चेंज होगी। हमारे सम की वैल्यू पहले थी 1 + 2 3, तो अब हो जाएगी 3 प्लस जो भी आई की करंट वैल्यू है 4, तो 3 + 4 7 हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू। अब हमारी सम की वैल्यू हो गई 7। अब हमारी वापस से लूप एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट। मीन्स आई की वैल्यू जो हमारी 4 थी अब वो इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 5। अब लूप में एंटर कर जाएंगे, फिर इफ कंडीशन चेक करेंगे। इस 5 mod 3 = 0, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, लेकिन रिमाइंडर आएगा 2, और रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से सम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो हमारी सम की वैल्यू 7 थी उसमें आई मीन्स 5 और ऐड हो जाएगा, तो अब हमारी सम की करंट वैल्यू हो जाएगी 12। अब नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 6। आई की वैल्यू 6 होने के बाद ये कंडीशन 6 > 10 फिर से ट्रू हो जाएगी, फिर से लूप की बॉडी में एंटर कर जाएगा। इफ 6 mod 3 = 0, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट हमारा 2 आएगा, मीन्स आंसर हमारा 2 आएगा, लेकिन रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो यहाँ पे मॉड मीन्स रिमाइंडर की बात हो रही है, तो 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स अब सम की वैल्यू में आई की वैल्यू ऐड नहीं होगी, मीन्स 12 का 12 रहेगा, उसमें आई की वैल्यू मीन्स की 6 ऐड नहीं होगी, और नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, 6 की वैल्यू मीन्स आई की जो वैल्यू है 6, उसको फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, वो हो जाएगी 7, फिर 7 > 10, ये वाली कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम लूप के अंदर आ जाएंगे, फिर इफ में आ जाएगा 7 mod 3 = 0, 7 mod 3 = 0, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, बिकॉज 7 mod 3 की वैल्यू आ जाएगी 1। 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सम की वैल्यू हमारी जो 12 थी, तो हम अब सम की वैल्यू हो जाएगी सम प्लस आई मीन्स 12 + 7, तो 12 + 7 हमारा हो जाएगा सम की वैल्यू 19। नेक्स्ट इटरेशन में जो आई की वैल्यू 7 थी अब वो हो जाएगी 8, 8 > 10, तो फिर ये लूप में एंटर कर जाएगा। अब नेक्स्ट हम कंडीशन चेक करेंगे, आई mod 3 = 0, मीन्स 8/3 इक्वल्स टू 8 को हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आता है और रिमाइंडर 2 आता है, आंसर 2 आता है और रिमाइंडर भी 2 आता है। सो 8 mod 3 का आंसर तो आ जाएगा 2। तो ये स्टेटमेंट हो गई, ये कंडीशन जो दी हुई है वो हो गई फॉल्स, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और सम की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। हमारी सम की वैल्यू थी 19 और उसमें आई मतलब कि 8 और ऐड हो जाएंगे, तो 19 और 8 हमारी हो जाएंगी 27, 27 ऐड होने के बाद सम की वैल्यू हो जाएगी 27, और आई की वैल्यू हमारी जो 8 थी वो अगले इटरेशन में फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब हमारी आई की वैल्यू हो गई 9, 9 > 10 So this condition becomes true again. Next we enter the loop and then we check the second condition again. If I mod 3 = 0, तो I की जगह अब हमारा आ जाएगा 9, 9 mod 3, 9 3 से टोटली डिविजिबल है, मीन्स 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 3 और रिमाइंडर बचता है 0, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। फिर हमारा कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा और 9 जब आई की वैल्यू थी वो वाला इटरेशन स्किप हो जाएगा, मीन्स अब सम की वैल्यू 27 थी तो 27 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएंगे जब 9 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 10, तो आई की वैल्यू अब हो गई 10 और 10 > 10 सो अब फॉर लूप में एंटर कर जाएंगे। इसमें हम दूसरी कंडीशन फिर से चेक करेंगे, इफ 10 mod 3 = 0, सो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3 और रिमाइंडर आता है 1, तो 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो कंटिन्यू वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमारे सम की वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई होगी, फिर से सम की वैल्यू हमारी अभी तक की थी 27, लेकिन अब हो जाएगी 27 + आई मीन्स सम प्लस आई, तो 27 + आई की वैल्यू हमारी थी 10, तो 27 + 10 तो हमारे सम की वैल्यू हो जाएगी 37। यहाँ पे लास्टली हम क्या करेंगे, वापस से 10 है हमारी आई की वैल्यू, तो वो नेक्स्ट इटरेशन में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब हमारी आई की वैल्यू होगी 11 और यहाँ पे कंडीशन है आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट, फॉर लूप इससे आगे प्रिंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो फॉर लूप के बाहर जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है सम परसेंट डी, जो हमारा सम जो अभी हम कितने कैलकुलेट किया है परसेंट डी के थ्रू यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जो भी यहाँ पे इस सम
वेरिएबल में वैल्यू होगी, परसेंट डी के थ्रू प्रिंट हो जाएगी हमारी स्क्रीन पे। नेक्स्ट रिटर्न 0 टू रिटर्न द आउटपुट, एंड हियर इज द वैल्यू that is printed, that is the value of sum, that is 37, that we also calculated it, right? Next, now we had the go to statement. go to statement क्या होती है? go to statement भी एक control statement का type ही होती है, which allows us to jump to a labeled statement in the same function. एक same function में एक labeled statement दी हुई होती है जिस पे हम jump कर जाते हैं through the go to statement. जहां पर भी आपको go to statement एनकाउंटर होगी, वहां पर हम उस लेबल्ड स्टेटमेंट पे जंप कर जाएंगे जो उस गो टू स्टेटमेंट में मेंशन्ड होगी। लेबल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की जाती है थ्रू द आइडेंटिफायर कॉल्ड लेबल। जो भी हमारी गो टू स्टेटमेंट होती है उसमें लेबल आइडेंटिफायर होता है, और नेक्स्ट इट इज प्रोसीडेड बाय एन आइडेंटिफायर फॉलोड बाय अ कॉलन। इसमें एक आइडेंटिफायर होता है जिसके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि कॉलन यूज किया जाता है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल, हियर हैश इंक्लूड stdio is the header file, int main is the main function, and it फर्स्ट वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल सम इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने यहाँ पे सम दे दिया वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने दे दी 0। फिर एक लूप आ जाएगा जिसमें इंट आई इक्वल्स टू 0, इंटीजर आई की वैल्यू आ जाएगी 0, इसमें आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। जब तक आई की वैल्यू लेस देन और 10 के इक्वल है जब तक ये लूप चलेगा। आई प्लस प्लस हर इटरेशन पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब लूप की बॉडी में देखते हैं, इसमें क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस 1। सो सम की वैल्यू हो जाएगी सम प्लस 1, मीन्स सम हमारा था 0, सम की वैल्यू हमारी थी 0, और यहाँ पे सम की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस आई। तो आई की वैल्यू है 0, तो सम की वैल्यू 0 प्लस 0 अभी तो 0 ही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक और कंडीशन दी हुई है, इफ आई इक्वल इक्वल 3। अगर आई की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाती है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर अभी तो आई की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, तो ये स्किप हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा। वापस से ये लूप चेक करेंगे जब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। आई की वैल्यू 1 हो गई एंड 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये लूप में एंटर कर जाएगा। सबसे पहले हमारे सम कैलकुलेट होगा, मीन्स सम हमारा हुआ था 0, तो 0 प्लस आई, तो अब हमारा सम हो गया 1। सम की वैल्यू हमारी हो गई 1। अब हम ये कंडीशन फिर से चेक करेंगे, इफ आई इक्वल्स टू 3, इक्वल इक्वल 3 मीन्स आई की वैल्यू है 1, 1 इक्वल इक्वल 3, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से ये लूप चेक करेंगे, लूप में इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 थी अब 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 10, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर वापस हम ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर कर जाएंगे। ब्लॉक ऑफ कोड में है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। हमारी सम की वैल्यू अभी तक हुई थी आई, और अब नई वैल्यू आ जाएगी, सम की वैल्यू हमारी जो नई कैलकुलेट होगी वो आ जाएगी सम प्लस आई, मीन सम की वैल्यू अभी तक हमारी हुई थी 1, तो 1 प्लस, अब हमारे आई की वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2, तो हमारी सम की वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ आई इक्वल इक्वल 3। आई की वैल्यू 3 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि अभी हमारा आई 2 है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये फिर से लूप चेक करेगा आउटर, आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट, अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद लूप में एंटर कर जाएगा। लूप में एंटर करने के बाद सम की हमारी वैल्यू अभी तक की थी 3, लेकिन अब और चेंज हो जाएगी, हमारी सम की वैल्यू हो जाएगी सम प्लस आई, मीन्स 3 प्लस आई की वैल्यू हमारी है 3, मीन्स 3 प्लस 3 हमारी सम की करंट वैल्यू हो जाएगी 6। नेक्स्ट ये कंडीशन चेक करेगा, इफ आई इक्वल इक्वल 3, मीन्स अभी हमारी आई की वैल्यू है 3 और 3 इज इक्वल इक्वल 3, ये कंडीशन हो गई ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होते ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ कोड में हमारा है गो टू। गो टू इज द कीवर्ड फॉर यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। go to addition. Addition is the label where we jump through the block of code. अब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये जंप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जिसमें हमको गो टू एडिशन, तो एडिशन नाम के लेबल पे जाना है हमको। अब ये लूप वापस से कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब डायरेक्ट यहाँ से हम जंप करेंगे एडिशन नाम के लेबल पे। ये हमारा एडिशन नाम का लेबल है। एडिशन नाम का लेबल में क्या होगा, प्रिंट होगा, क्या होगी, परसेंट डी। किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, सम नाम के वेरिएबल की। जो भी हमने अभी तक सम कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू अभी तक 6 आई थी, वो यहाँ पे एडिशन के लेबल के अंदर प्रिंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लेबल एडिशन, इसके थ्रू प्रिंट हो जाएगी। और ये हमारा प्रोग्राम
टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे, रिटर्न 0 आउटपुट रिटर्न कर देगा। लेट्स सी द आउटपुट, हियर द आउटपुट इज 6। So this is the go-to statement that we use to jump and transfer the control from one code to another code. Next, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट अभी तक हमने बहुत बार यूज किया अपने प्रोग्राम्स में, तो देखते हैं ये क्या है। रिटर्न स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एंड रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलर ऑफ द फंक्शन। जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, तो उस फंक्शन के एंड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड करने के लिए, या फिर उस फंक्शन के या फिर उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एंड करने के लिए, उसकी वैल्यू रिटर्न करने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज आती है। इट इज स्पेशली यूजफुल इन यू वांट टू पास अ रिजल्ट बैक टू द कोड दैट कॉल्ड द फंक्शन। द रिटर्न स्टेटमेंट इज मोस्टली यूज एट द एंड ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन के एंड में यूज आती है रिटर्न स्टेटमेंट। यू कैन ऑल्सो एड एन रिटर्न कीवर्ड एट एनी प्लेस इन द फंक्शन। हम डायरेक्टली रिटर्न कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं हमारी किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्लेस पर, where required only, but it is not advisable and it would be better to use that in the end, but it is not advisable। ये सबसे बेस्ट रहता है हम किसी फंक्शन के एंड में यूज करें रिटर्न कीवर्ड। बाय डिफॉल्ट फंक्शन डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। डिफॉल्ट फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फंक्शन में रिटर्न द बिलो वैल्यूज। फंक्शन कुछ वैल्यूज रिटर्न करते हैं, जस्ट लाइक बुलियन, नंबर्स, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, एरेज, फंक्शंस, नल वैल्यू, वॉइड वैल्यू और एनी एक्सप्रेशन। ये सारी टाइप्स ऑफ वैल्यूज थे जो कि एक फंक्शन रिटर्न कर सकता है। Let's see with an example. Here is hash include stdio.h is the header file. Int add is the name of the function. Here we had declared a function. We had also initialized it here, which returns the value in integer type. यहाँ पे हमने एक फंक्शन दिया है जिसका रिटर्न टाइप है int, जो कि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप में रिटर्न करेगा। फंक्शन का नेम है add, और आगे जो राउंड ब्रैकेट्स पे लिखा हुआ है वो है फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स जो भी हम कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बॉडी में दिया हुआ है रिटर्न ए प्लस बी। ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है हमको, ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये है रिटर्न ए प्लस बी। मतलब ये रिटर्न करेगा ए और बी को ऐड करके उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अब आगे ये फंक्शन हमारे प्रोग्राम में कैसे यूज आएगा। मेन फंक्शन हमारा इंट मेन फंक्शन में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसके थ्रू हम जो भी नंबर डालेंगे वो इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स में जाएंगे और वो ब्लॉक ऑफ कोड में प्रोसेस होकर जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे वो हमको स्क्रीन पर दिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, सम, ए और बी। इसके लिए सबसे पहले हमने एंटर कराया ए और स्कैनफ में डाल दिया %d एट द एड्रेस ऑफ ए। नेक्स्ट हमने एंटर कराया बी की वैल्यू और उसको डाल दिया स्कैनफ में एट द एड्रेस ऑफ बी। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला डाला सम। सम हमने जो वेरिएबल इनिशियलाइज किया था उसको हमने वैल्यू दी। हमने वैल्यू क्या दी उस सम को, कि उस सम में वो वैल्यू चले जाए जो ऐड फंक्शन के थ्रू आ रही है। अब ऐड हमने जो फंक्शन लिखा है उसमें जो पैरामीटर हमने दिए हैं उनकी वैल्यू हमने क्या पास की है, ए और बी। जो मेन फंक्शन में ए और बी की वैल्यू है ना, जो हमने यूजर से एंटर कराई है, वो इस पैरामीटर के थ्रू उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में जा रही है। मीन्स हमने जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ए में हमने यूजर एंट्री कराई और यूजर ने डाल दिया ए में 10, और बी में हमने यूजर एंट्री कराई और यूजर ने डाल दिया बी में 20। तो यहाँ पे हमारी ए और बी की जो भी वैल्यू होगी, मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल हमने ए की वैल्यू ली है 10, बी की वैल्यू ली है 20। तो यूजर ने 10 और 20 जो ए बी की वैल्यू डाली है वो इस फंक्शन कॉल, ये जो हमारे यहाँ पे लिखा है ना ऐड, जिसमें ब्रैकेट में ए और बी लिखा हुआ है, ये है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कराते टाइम हमने जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे ना फंक्शन में, फंक्शन की डेफिनेशन में, उसमें जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे यूजर ने एंटर किया ए और बी की वैल्यू, वो यहाँ पे फंक्शन कॉल में पास हो जाएगी। फिर इस वाले टाइम पे जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो हमारा कंपाइलर प्रोसेस करेगा जो हमारा ऐड नाम का फंक्शन था, उसमें जो हमने इंट ए और बी लिए थे, उसमें हमारी जो प्रोग्राम की जो वैल्यू है ए और बी जो यूजर ने एंटर किया वो ट्रांसफर हो गई। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ऊपर वाले इंट ए और बी में ट्रांसफर हो गई, जो कि 10 और 20 थी। ऊपर ट्रांसफर होने के बाद अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन डेफिनेशन में लिखा हुआ है रिटर्न ए और ए प्लस बी, तो हमारे ए और बी जो भी यूजर ने एंटर किया था, जो उस फंक्शन की डेफिनेशन में ट्रांसफर हुई है, ए और बी ऐड करके, मीन्स 10 और 20 ऐड करके हमको रिटर्न कर देगा। तो वो रिटर्न करेगा हमको 30। जो हमारा सम, हमने यहाँ पे सम को जो वैल्यू दी है ऐड और ब्रैकेट में ए प्लस बी, वो हमारे को रिटर्न कर रहा है वैल्यू 30। तो सम में क्या वैल्यू आ जाएगी 30। नेक्स्ट ये प्रिंट हो जाएगा जो भी द सम इज %d, जो भी वैल्यू सम में थी ना वो %d के थ्रू प्रिंट हो जाएगी हमारी स्क्रीन पे, और रिटर्न 0 फॉर आउटपुट। अब इसका आउटपुट देखते हैं हमने। जस्ट हियर एंटर ए, तो यूजर ने एंटर कर दिया 1। नेक्स्ट आ गया एंटर बी, तो यूजर ने एंटर कर दिया 5। ये जो दो ए और बी की वैल्यू थी ये ऐड फंक्शन के थ्रू गई फंक्शन डेफिनेशन में, और फिर प्रोसेस होकर रिटर्न हुआ ए प्लस बी, और ए प्लस बी की जो वैल्यू थी वो स्टोर हो गई वेरिएबल सम में, और सम के थ्रू प्रिंट हो गया ये वाली लाइन, द सम इज 6। दैट्स ऑल फॉर द रिटर्न स्टेटमेंट।
So that's all for the today's class. If you have any doubt, any query, you can ask us in the comment section. If you have any doubt related to any program, any query related to any notes, so you can ask us in our comment section. Practice the programs that all the programs that you learned today, that you understand today. Revise the notes. See the video again and again for the better revision. And we will soon meet in our next video.